आइए हम और आप चलते हैं मणिपुर, मिलते हैं अपने साथी से, चलते हैं उड़ीसा, देवभूमि उड़ीसा की ओर। Hello everybody, my name is Gautam Numaite and I'm working as a primary teacher at Eastern Idol High School, Manipur. I love to be with my children and students. To be a teacher is a passion for me. Besides teaching books, I also taught them many life skill activities. My project to replace plastic bag by paper bag works well in the school area, where I taught my children to make paper bag and distribute free of cost to the local shops. Making TLMs, teaching learning materials and teaching with activities method is what I like most. I have also formed a team called Teachers Volunteer Team TVT with the groups of like-minded government school teachers and give voluntary support to government schools by drawing the walls of classes free of cost. We give this voluntary service only on Sunday and on our holidays. So far, we have painted about 100 government schools of Manipur. We also developed TLM teaching learning materials for schools of the state under the initiative of the Department of Education. Under my project Mission Whiteboard, about 16 schools were benefited with whiteboard free of cost. And these are some of my achievements printed in print media of state. So I am very happy to be part of this family, this award ceremony, and I also wish all the teachers who are selected for this award, and I hope we all will together can bring a development and a change in our education systems of the country. Thank you very much. Good morning to all. I am Dayanidhi Pradhan from Odisha. I belongs to a peasant family from a small village, Hondasankre, in the district of Bargarh. From early childhood, I had seen people living in a natural life. They were completely dependent on nature. Time changed. The agricultural country changed to an industrialized one. Precious natural resources were destroyed, making millions of creatures homeless. Weather became hostile. Working under a cement plant, I saw the destruction of flora and fauna. So I made up my mind to convert the desertified area into green environment. My motto of life is think green and keep clean. Till now, I have planted 30,000 plants in my locality. You can see them at the Mines area Dungri, Lakshminarayan High School, Nuagad, Dadibaban College, Bhatli, Panchayat College, Gaudga, Saraswati Shishu Vidya Mandir, Bhatli. Now the plantation area has become transformed to natural forest. It is glad to see a lot of wild birds and small creatures nested there. Apart from caring for nature, I am working for educational development in this locality, providing honorary teaching services. I also work for cleanliness and health care camp. I have volunteered a number of eye camp, health camp, blood donation camp in this underprivileged area. Presently, I am working for an old age home for the destitute. I welcome everyone to visit these places and see the difference. Thank you. उड़ीसा में डॉक्टर डोला मनी एक ऐसा नाम जो शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है और जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जन जागरूकता फैलाकर आम जनता के मध्य उनको जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं और आप अपने शिष्य और विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय हैं। भाई सफर शुक्ला गुरु की नगरी अमृतसर से हैं। आप पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं और अपने कार्यों के द्वारा आम पीड़ित जन की आवाज को उठाकर उसको न्याय दिलवाने के लिए लगातार संघर्षरत हैं भाई सफर शुक्ला। सफर शुक्ला जी का कार्य अपने आप में अद्वितीय है। आप टीवी
के विभिन्न माध्यमों से अपना प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं स्नेहलता टुप्पो, माध्यमिक शाला आदर्श नगर, विकास खंड सीतापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ से, और आप सभी को इस राष्ट्रीय वेबिनार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सभी चयनित शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय दीपक गोस्वामी सर को बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसके हम सभी प्रत्यक्षदर्शी बन चुके हैं और आप लोग बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुनिए, आदर्श संस्कार शाला पे मेरा एक गीत है और जिसे मैंने आदर्श संस्कार शाला के लिए ही लिखा है और समर्पित किया है। सुनिएगा। संस्कार शाला चल रही आदर्श के संकाय में, संस्कार शाला चल रही आदर्श के संकाय में, नैतिक गुणों के पाठ हो जीवन के हर अध्याय में, नैतिक गुणों के पाठ हो जीवन के हर अध्याय में। और सुनिए अगला इसका बंद है। संवेदना गरुर न हो, शिक्षा से फिर क्या लाभ है। संवेदना गरुर न हो, शिक्षा से फिर क्या लाभ है। नैतिकता पूरित तन वसो और मन गगन करुणाभ है। जब मूल्य रस बरसे नयन, तब स्नेह हो समुदाय में। जब नेह रस बरसे नयन, तब स्नेह हो समुदाय में। नैतिक गुणों के पाठ हो जीवन के हर अध्याय में। राधे प्रकट हो। राधे राधे। राधे राधे। आदरणीय गुरुदेव जी कैसे हैं? बस बढ़िया है। काम करते हैं युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए, गांव के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए। थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं और एक संदेश अपने साथियों को दें कि और साथी इस कार्य के लिए कैसे प्रेरणा बन सकते हैं, कैसे समाज की मदद कर सकते हैं। आदरणीय गुरुदेव पचौरी जी। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपकी आदर्श संस्कार शाला ने एक बड़ा मैसेज देने के लिए मुझे यहाँ प्रेरित किया है। आज के समय में सबसे बड़ा जो कारण है वो बेरोजगारी, और बेरोजगारी के कारण जो है, जो युवा वर्ग है वो रास्ते को भटक जाता है। वो कुछ जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, वो उसको न करके वो क्राइम की तरफ चला जाता है, और अपने दिमाग का, वो बोलते खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो दूसरे साइड में अपने आप को मूव कर लेता है। तो ये संस्थान 1982 में जो हमारा रूटसेट संस्थान है शुरू हुआ, डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी जो इसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसको शुरुआत किया, और उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि आदमी को स्किल दिया जाए, उसको रोजगार परक बनाया जाए, जिससे कि वो कोई अपना काम करे। जब उसको कोई हुनर आएगा, कोई काम वो सीखेगा, तो कोई भी काम वो कर सकता है। और उस काम को सीखकर उन्होंने उसको प्रेरित किया कि वो अपना मालिक बने, किसी का नौकर नहीं बने, वो किसी की नौकरी नहीं करे, वो स्वयं का मालिक बने, दूसरे को रोजगार दे। तो उसमें ट्रेनिंग के बाद जो होता है स्किल ट्रेनिंग, जैसे मोबाइल बनाना है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, एसी फ्रिज का है, टू व्हीलर का है, बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग है जो स्किल ट्रेनिंग है। और उसको लेने के बाद उसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो अपना काम करे, और उस काम को करने के बाद वो दूसरों को भी रोजगार दे। क्योंकि एक बेरोजगार की अगर आप रोजगार देख के बेरोजगारी खत्म करते हो, उसको रोजगार मिलता है, तो वो अपने परिवार का पालन और पोषण सही से कर सकता है। संस्थान का उद्देश्य यही है, और उसमें संस्थान में 2008 से हम जुड़े हुए हैं और वहां पर ये अपना काम करते हैं। उसमें पढ़े लिखे जो युवा बेरोजगार वर्ग के लोग हैं, उनको लाना, जमीनी लेवल पे काम करना, उनको प्रेरित करना, उनको जागरूक करना, जिससे कि वो संस्थान में आए और वहां से कोई रोजगार परक प्रशिक्षण लें, और उसको सीखने के बाद वो अपना कोई काम करें, जिससे कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो। और मैं और साथियों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस देश में भारत सरकार के द्वारा,
राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, जिनका लाभ उठाकर हमारे ग्रामीण युवा, हमारे शहरी युवा या कोई भी महिला अपने आप का विकास यानी स्वरोजगार की, अभी आपको स्वयं सहायता समूह की अगर हम बात करें किसान क्लब की, हम बात करें एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पूरा एक फोकस है। हमारा मानना ये है कि जब तक ये जो हाथ है, ये हाथ ऐसे फैला रहेगा, बेकार रहेगा, और जिस दिन ये हाथ ऐसे बन जाएगा, इसकी अहमियत बन जाएगी। ये बनेगा कैसे? इसके अंदर तकनीक का, इसके अंदर ज्ञान का, इसके अंदर आपके कौशल का अनुभव जोड़ना होगा। अब मैं संदेश के लिए अनुरोध करूंगा आदरणीय बहन अखिलेश्वरी शुक्ला जी, अगर मेरी आवाज को सुन रही है, अपने सारे साथियों को संदेश दें कि क्या संदेश वो देना चाहती हैं, जो पूरे साथी आपके सुन रहे हैं। समाज में ऐसा कार्य करें कि सभी को स्वावलंबन की शिक्षा मिले और महिलाएं आत्मनिर्भर हों, और इस आत्मनिर्भरता में दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाएं, आर्थिक रूप से सब सबल हो, सक्षम हो, किसी के आगे किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सरकार की योजनाओं का हम पूरा लाभ उठाते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचाएं। जो अनभिज्ञ हैं उनको हम बताएं कि इस प्रकार की योजना है। कई लोग नहीं जान पाते हैं इस योजना को, तो सरकार की योजना जिनको मालूम नहीं है तो हम बिल्कुल एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएं, ताकि एक एक व्यक्ति स्वावलंबी हो और बहुत अच्छे से कार्य करके समाज सेवा करता रहे। हे राधे, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। आइए आप भी करें वृंदावन में वास। वृंदावन में बसने का एक सुनहरा मौका, आधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित प्रेम मंदिर के नज़दीक हम आपके लिए लाए हैं हरे कृष्णा ऑर्चिड टाउनशिप, जिसमें स्टूडियो 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल हैं विशेष सुविधाओं के साथ, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, वाईफाई जोन, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, मीठे पानी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो कृपया एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दें। धन्यवाद।